زي الفرجة يلا خلينا خلی فرماتے ہیں کہ الحج العرفہ، پورا کا پورا حج جو ہے وہ میدان عرفات۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر انسان کوئی مریض بھی ہو، ہاسپٹل میں ہو، تو اس کو بھی عرفات کے میدان میں نیت کے لیے لایا جائے۔ باقی سارے ارکان آپ جو ہے وہ کسی کی نیابت میں یا الگ طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویح ہوتی ہے۔ یوم ترویح کا مطلب ہے کہ جس دن حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ جو ہے وہ ہے جس دن امام حسین کو کعبے سے نکالا جاتا ہے۔ دیکھیے جو سن رہے ہیں وہ اپنے بھی آپ پہ سنیے گا، تاریخ ہے، سن رہے ہیں تو دیکھو۔ تو 8 ذی الحجہ کو کعبے سے امام حسین گئے ہیں، جس وقت حاجی جو ہے وہ کعبے میں آتا ہے۔ میدان عرفات جس کے لیے ہے کہ 18 بائی 18 کلومیٹر، اور یہ وہ میدان ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں، جہاں انسان بغیر لباس کے قبر سے اٹھایا جائے۔ اسی جگہ کے لیے فاطمہ بنت اسد نے رو کے کہا تھا کہ میں کس طرح سے غربت کے عالم میں جو ہے وہ قبر میں جاؤں گی۔ اس وقت رسول خدا ان کی قبر پہ لیٹے اور اس کے بعد اپنا کپڑا دیا۔ جہاں تک بات سمجھ میں آئے سمجھیے گا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں گے۔ میدان عرفات جو صرف اشارے میں، جہاں 9 ذی الحجہ کو حاجی یہاں آتا ہے، چاہے وہ منا سے آئے، اہل سنت والے پہلے منا جاتے ہیں اور منا سے یہاں آتے ہیں، لیکن تمام حاجی کو 9 ذی الحجہ کو یہاں میدان عرفات میں۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب ابراہیم نے اپنا خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور جناب ابراہیم کو اللہ نے حج کی تعلیم دی، تو جناب ابراہیم نے کہا عرف تو میں نے پہچان لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ 25 طریقے کے عذاب ہوں گے۔ بہت سے انسان ہوں گے جو کتے کی شکل میں ہوں گے، بہت سے انسان ہوں جو سور کی شکل میں ہوں گے۔ وہ سارے قانون جو ایک انسان غرور گھمنڈ کر رہا ہوگا وہ چونٹی کی طرح ہوگا، جو اپنے آگے کسی کی سوچے نہیں، بولے نہیں، ہینڈل خود کرے اور سوچے کہ نہیں ہمارے ہے، جو اطاعت مولا، اطاعت رسول، اطاعت شوہر نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے کتنے سخت یہاں عذاب ہے۔ کوئی کان کے بل لٹکایا ہوگا، کوئی ناک کے بل لٹکایا ہوگا، کوئی ایک انگوٹھے، جو ایک انگوٹھے پہ کھڑے ہوں گے وہ شکر کریں گے کہ کم از کم ایک انگوٹھے پہ تو ہم کھڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں لٹکے ہوں گے، کتنے ناک کے بل ہوں گے، عجیب طریقے کا ماحول ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا اسی محشر میں جب ایک انسان کا پسینہ اتنا بہے گا کہ 40 اونٹ بھی پئیں گے اس کے ناک اور کان سے۔ تھوڑا سا ہمیں خوف محشر اور برزخ کا بھی خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عرفات کی لذت ہمیں محسوس ہو۔ جب انسان کے ناک اور کان سے اس کا پانی پسینہ جائے گا، پیاسا ہوگا تو اس کے پھوڑے پھنسی کا پانی اس کو پلایا جائے گا، غسالہ پلایا جائے گا، غسل کا پانی پلایا جائے گا۔ یہی وہ میدان ہے، میدان امام زمان، سن رہے ہیں، جو شفاعت کا میدان ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت جو ہے وہ حاجی ظہر سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مجلس کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ یہاں ظہر کے وقت، زوال کے وقت یہ نیت کی جاتی ہے، قیام میں کرتا ہوں میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک واجب قربتان پھیلا ہوا۔ پھر یہاں مغرب ہوتے ہوئے، ابھی تو ماشاءاللہ لوہے کا ٹینٹ جو ہے وہ خیمے ہوتے ہیں، ورنہ یہ خیمہ اجڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور صرف رات اور دن انسان کا گریہ ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ہم لوگ آتے ہیں حاجیوں کے سارے انتظام کرنے کے لیے۔ ایک آدمی ہے وہ سارے حاجیوں کا انتظام کر رہا تھا کہ ایک بزرگ ہستی بڑی جوان خوبصورت آئے، انہوں نے کہا کہ حاجی کا سارا انتظام کر دیا؟ کہا کر دیا۔ تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا، آخر میں پوچھا کہ چائے کا انتظام ہوا؟ انہوں نے یہ گھبراہ کرے، میں نے چائے کا تو انتظام نہیں کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رک جاؤ میں کرتا ہوں۔ وہ لے کے تھوڑی دیر چائے آئے، آپس میں باتیں کافی ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وہ میدان ہے، میدان عرفات، جہاں حساب و کتاب، تھوڑی دیر کھڑے رہیے، اگر ایک دن کی سزا مل جائے گی تو 50,000 سال کھڑا ہونا پڑے گا، اور 50,000 سال یہ دنیا والا نہیں، بڑے سخت منزل ہوگی۔ صرف ایک سزا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک سزا یعنی 50,000 سال کھڑے رہے۔ تو میرے عزیزوں وہ جو ہے گفتگو کرتے رہے، آواز دیتے رہے، یہ میدان عرفات ہے،
और यहाँ हिसाब किताब है, कोशिश करो कि हसन के नाम पे उम्रा कर लो। ये 6 दिरहम है। ये अब भी नहीं समझे कि ये कौन है, ये हसन अस्करी। कहा आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब मैंने सुना है कि इस मैदान में इमाम ज़मान आते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करिए। कहा तुम्हारे खैमे में ज़रूर तुम्हारे इमाम आएंगे। कहा क्यों मेरे खैमे में? कहा तुम्हारे खैमे में जनाब अब्बास के मसाइब हैं और मैं वहाँ ज़रूर आता हूँ। फ़ौरन वो ताज्जुब किया कौन है। फिर दूसरे दिन जब ज़ोहर का वक्त आया तो उन्होंने देखा कि उस खैमे के बाहर खड़ा हुआ है, चप्पलों में खड़ा हुआ है, गुर्बत के आलम में रो रहा है। पूछा कौन? कहा मैंने कल वादा किया था वहाँ मेरे वहाँ अब्बास। ये शफात का मैदान। सबसे पहले शफीयत कौन होगी? नमाज शब शफात करेगी, कुरान शफात करेगा, दीन शफात करेगा, रसूल खुदा शफात करेंगे। उसके अलावा भी शफात का कोई सामान नहीं होगा, सुनेंगे दिल हिल जाएगा। तो आखिर में रसूल की बेटी इस मैदान में आएगी। रसूल खड़े होंगे, सारे नबी खड़े हो जाएंगे। एक मरतबा रसूल पूछेंगे बेटी ये साथ तुम्हारे चाहने वाले आए, हुसैन पे मानने वाले आए, इनकी शफात नहीं करोगी? क्या बाबा इनकी शफात मैं नहीं करूँगी? सबका है कौन शफात करने वाला? क्या शफात का कोई सामान लेकर आई हो? सुनो, उस वक्त जनाब सैयदा अपने दामन को खोलेंगे, 2 कटे बाजू निकालेंगे, जनाब अब्बास के हाथ को उठा के आवाज़ देंगे परवरदिगार ये मेरे औलाद मेरे बेटे अब्बास। तब तवज्जो करिएगा, खुदा इससे दिल किसी के पत्थर न हो कि मैदान अरफात में हो और इंसान की जो है आवाज़ें न रो। 5 तरीके के रोने के लिए है कि नहीं रोना है, न रो, कम से कम चेहरा बना लो, नो के बराबर एहसास हो घूमना। ये मैदान अरफात बड़ी गुर्बत का मैदान है, कोई सहारा नहीं होगा। रिश्तेदार गुजरेंगे, इंसान अपने चेहरे पे हाथ डालेगा कि अल्लाह ये गुजर जाए, मेरे सामने से ना गुजरे। बड़ी मुश्किल वक्त होता है कि जहाँ इंसान मैदान अरफात में गुजारे। यहाँ शफात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर आखिर में वो तवज्जो की है कि इमाम ज़मान कह रहे हैं कि मेरे बाप इमाम हसन अस्करी पूरे ज़िंदगी क़ैद में रहे और यही तन्हा इमाम है जिन्होंने हज और उम्रा नहीं किया। इमाम फरमाते 600 दिरहम ले लो, मेरे बाबा के नाम पे उम्रा कर लो। कैसा आप उम्रा करते हैं तो उस इमाम को अपने उसमें शामिल रखिए ताकि इमाम ज़मान राज़ी और खुशनूद हो जाए। मगरिब का वक्त होता है, खैमे उगड़ने लगते हैं जैसे शाम गरीबा हो और इंसान उजड़ा हुआ यहाँ से निकलता है मैदान मुज़दलिफ़ा। यही वह मस्जिद निमरा है। आप बस पे देखेंगे तकरीबन 5 से 7 लाख लोग वहाँ बैठते हैं। हज का खुतबा वहीं से स्टार्ट होता है और ये वो जगह है जो जबल रहमत है, सामने देख लीजिए। यहाँ हम लोग जाते हैं, ऊपर जो है पहाड़ है जबल रहमत, जहाँ जनाब आदम और जनाब हव्वा से मुलाकात हुई। और अब भी नहीं समझे कि कभी कभी आपने ज़िंदगी में एक मरतबा दुआए अरफा ज़रूर पढ़ी हो। हुसैन खड़े हो के यहाँ काबे का रुख करके दुआए अरफा पढ़ बैठ के नहीं रोते जाते हैं, दाढ़ी से आंसू बहता जाता है, खुदा को याद करते जाते हैं। और आज 35 तरीक़े की हड्डियाँ इमाम हुसैन ने बताई, 3 तरीक़े से जिस्म की खाल इमाम हुसैन ने बताई। हमारे बदन में कितनी नसें हैं, कितने हैं, बच्चा माँ के पेट में कितने पर्दों में रहता है, इमाम हुसैन ने बताया। आज जो साइंस ने तरक्की की है वो दुआए अरफा के ज़रिए। कभी तन्हाई में बैठे हुसैन के गुरबत, वहाँ एक चबूतरा है, चबूतरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चबूतरा ज़ैनुल आबिदीन इमाम जनाब इब्राहीम, उसी के नीचे पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा दिया था कि सब इंसान बराबर है, मोमिन बराबर है और किसी की तौहीन नहीं करना, किसी में कमियां नहीं निकालना है और अपने घरों की औरतों का अदब एहतराम करना। पूरा खुतबा है रसूल खुदा का। तो लिहाजा ये मैदान अरफात हमारी क़यामी की दुआ करो कि अल्लाह हमारा यहाँ खड़ा होना आखिरी ज़िंदगी का खड़ा नहीं होना है, हमें हिसाब व किताब के लिए न खड़ा होना, जनाब अब्बास के हाथ के साए में हमें शफाअत का दर्जा इनायत फरमा। आमीन। मैदान अरफात हमें रुस्वा ज़लील करना नहीं, इसलिए कि यहाँ सबके चेहरे पर उसके गुनाह लिख दिए जाएंगे, उसकी परेशानी लिख जाएगी। हे मेरे अल्लाह यहाँ माफ़ नहीं हुआ, फिर कहीं माफ़ नहीं होगा। मेरे करीम परवरदिगार साफ है, नाफरमान है, सब कुछ है, लेकिन हुसैन गरीब का चाहने वाला मेरे दिल में या हुसैन अल गरीब बोलो, न रोना एक आवाज़ बदलते हाय हुसैन।
मैदान में बीवी हर जगह जाती है कि कहाँ हुसैन पे रोने वाले हैं, इसी मैदान आरफा को दुआ करो कि अल्लाह इस साल और हर साल हमें इस मैदान आरफात में आने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। जो मरीज है उन्हें शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमाए। आमीन। हर शख्स अपने पाँव से अपनी इरादे के साथ, अपनी नियतों के साथ, अपने हुनर के साथ ये बेहतरीन इबादत करने की दौलत अता फरमाए। आमीन। मैदान आरफा है मेरे अल्लाह, मदीने में रहते हुए हमसे कोई गलती कोताही हो गई, ये कमियां, वो खराबियां, इसी टेंशन में पूरे अमाल खराब कर दिया। मक्के में भी हमारी यही परेशानी है मेरे अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर पाए कि हम जैसे गरीब, नाचीज, गुनाहगार, जाहिल तेरे दरबार पे आए हैं। मेरे अल्लाह हमारी सारी कोताहियों को आमीन। अच्छी तरीके से तुमने मेहमान बना के रखा है मेरे करीम परवरदिगार। हमारी यह हैसियत नहीं थी कि तेरे दरबार तो अंबिया और मुरसलीन का मकाम है, शुहदाए सिद्दीकीन का मकाम है। तेरे दरबार में हुसैन गरीब खड़े होते हैं मेरे अल्लाह, हमारे पास कोई अमाल नहीं तेरे सामने खड़े के लाया। मेरे करीम परवरदिगार हम सब की कोताहियों और गलतियों को माफ फरमा। आमीन। आपस में इज्जत और कामरानी एक जान बन कर जिंदा रहने की तौफीक हमें तमाम फितने आफात और बलाओं से महफूज फरमा। आमीन। खुदावंद आलम इसी आमीन पर हुसैन गरीब आमीन आमीन। मैदान अरफात मैदान हमें तमाम बन जाएगा। काबे को जाके हम कहेंगे काबा तुझे सलाम है, तेरे वाली और वारिस हमें तमाम के मैदान में होके आए। अल्लाह इस मैदान में रुसवा न करना, हमें बगैर लिबास के इस जगह न बुला, हमारी पेशानी पे गलतियाँ और कोताहियाँ न लिखना कि लोग जो है वो समझ जाएं कि कौन गुनाहगार। मुझे ज़हरा का वास्ता, रसूल का वास्ता। यहाँ हम लोग पहले आके दो रकात नमाज पढ़ते थे, लेकिन गुरबत है, सब कुछ बंद है, लिहाजा अपने जो है हरम में जाके इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज मैदान अरफात में अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए, मग़फ़िरत के लिए और इमाम ज़मान की बारगाह में अपने अमाल की कबूलियत के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लीजिएगा। इसी मैदान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जाएगी वो मैदान में लोगों के काम आना, यानी पानी पिलाया नहीं। हमने लोगों के से पानी पिया है, पानी पिलाया है नहीं। जनाब रसूल खुदा मेरी तरफ देखिए, और आखिरी बात है, जनाब रसूल खुदा ने जनाब हमज़ा की कब्र पे बैठ के आवाज़ दिया, चचा कब्र में क्या होता है? या ऐसे मौलवियों ने डराया, तो कब्र जनाब हमज़ा से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जनाब हमज़ा, अमीर हमज़ा की शहादत की तारीख, ईद के दिन यूपी में इनकी पहले सवैया पे नज़र होती है, और जनाब हमज़ा जो रसूल खुदा की सारी ज़ियारत, सारे मामलात लिखते हैं, उन्हीं के भी डिपार्टमेंट है। शाह अब्दुल अज़ीम की भी आज शहादत की तारीख़ है, और छठे इमाम की एक दिन पहले शहादत की तारीख़ है। जो तारीख़ें बहुत सी मुनासिबतें हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह गुजारिश करेंगे। तो क़ब्र जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा मैदान वहाँ गए ना, वहाँ से आवाज़ आई, या रसूलल्लाह कब्र में इतनी दौलत मिल गई कि मुझे कुछ अब ज़रूरत नहीं है। कहा क्या? कहा एक जो हम आपको और आपकी आल पे सलवात और दुरूद पढ़ते हैं, इसकी वजह से अल्लाह ने मेरी कब्र को रोशन कब्र मेरी जो है वसी हो गई, जन्नत हो गई। कैसे इतनी देर खड़े हैं, याद तो रहेगा ना मैदान अरफात में, अल्लाह मेरे पाँव को मजबूत करना। जिस वक्त सबके पाँव कट के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, इंसान के पाँव कमज़ोर हो जाएंगे, वो चल के नहीं जा पाएगा, पूरे सिरात पे नहीं चल पाएगा, इसी मैदान अरफात में इमाम ज़मान आपकी नुसरत और मदद करेंगे। दूसरे जो हम अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत करते थे, और तीसरा जो हम लोगों को पानी पिलाते हैं। प्यासे को भी पिलाना सवाब है, जो प्यासा नहीं है उससे भी सवाब है। चौथे इमाम अपनी माँ से लेके पानी पिया करते थे। किसी ने कहा माँ को ज़हमत देते? कहा इतना सवाब है पानी पिलाने का कि इस सवाब को माँ के अलावा मुझे देना ही नहीं। मौला ने फरमाया सबसे पहला हिसाब पानी पिलाने का हो। मैदान महशर हर तरीक़े की प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी अगर किसी के प्यास को तुमने बुझाया। अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम हुसैन गरीब की प्यास को याद करें। इस मैदान में सबसे पहली फरियाद जो इमाम हुसैन की आएगी ना, कि मेरे परवरदिगार उसका इंसाफ कर दे कि मेरे हाथ में नन्ना मुजाहिद है, जिसके सदक़े में कुल कायनात है, वो जालिमों से थोड़ा सा खतरा पानी मांगे। कभी जनाब सैयदा फरियाद करेंगे
परवरदिगार मेरा हिसाब कर दे, मेरा लाल असगर किस तरह मारा गया, कभी जनाब खदीजा कहेंगे मेरे मोहसिन किस तरह शहीद हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आप, मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे अभी प्यासे हैं, एक मरतबा जनाब सैयदा कहते हैं परवरदिगार मैं मुतमईन नहीं हूँ, कहा क्या देखना चाहते, कहा इस मैदान में मुझे हुसैन देखा, करबला में मेरा हुसैन, सैयदा देख सकोगी, कहा हाँ देख सकूंगी। एक मरतबा मैदान महशर में, क़ल्ब महशर में यही इमाम हुसैन की सवारी आएगी, सर नहीं होगा, असीरों का काफिला चल रहा होगा, जनाब सैयदा कहती है मेरे लाल को पत्थरों से या मौला इमाम ज़मान जनाब अबुल फज़ल अब्बास के उस्ताद का वास्ता जो आपको बहुत पसंद है। अब्बास घोड़े से ज़मीन पे आए तो हाथ नहीं, सर पे गुर्द मारा है तो हाथ नहीं। मौला इमाम ज़मान आपको जनाब अबुल फज़ल अब्बास के मसाइब का वास्ता मुझे यहाँ से खाली वापस रखा, उठने और कमर और आंखें नहीं मांग रहे, हमें मार्फत चाहिए। कम अज कम 24 घंटे में मैं 5 मिनट अपने इमाम के लिए काम करने की तौफीक बनाया, हम याद से गाफिल न हो। परवरदिगार इस यहीं तक हम मुतमईन नहीं है कि तूने अरफे में या उम्रे में बुला लिया, हमें हज बैतुल्लाह की दावत देना, हमारे पैसे हमारी ताकत को न देखना, अपनी अता अपनी मेहरबानी। यही जनाब आदम की तौबा कबूल हुई थी और यही मुलाकात हुई थी जहाँ अरब को जनाब आदम ने अपने आप को पहचान लिया। अपने लिए दुआ करिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए दुआ करिए, दूर से खड़े हुए ग्रुप के साथ फ़ोटो ले लो ताकि हर आदमी जो है वो, मुझे ख्वाहिश नहीं है इतने फ़ोटो, लेकिन कम अज़ कम ये याद रहेंगे बाद में। सब अपनी अपनी दुआ करो, जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी अता कर, जो बे औलाद है उनको औलाद अता कर, परवरदिगार जो बेघर हैं उनके घर अता कर, जो यहाँ आना चाहते हैं उनकी नज़र अता कर। मौला हमारे मरहूम इनको मग़फ़िरत अता कर, मोहम्मद को अच्छी लड़की मिल जाए, हमारी जैनसुल की आबाद कर मौला। कोई जवान ले लो भाई, थोड़ा पानी ले लो। ये ले।